Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't have our military. अमेरिका के व्हाइट हाउस में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात तीखी बहसबाजी में बदल गई। इस मुलाकात से यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के रुकने की उम्मीद दुनिया कर रही थी, लेकिन बातचीत उस वक्त पटरी से उतर गई जब दोनों नेताओं में तीखी नोकझोंक होने लगी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को देश को युद्ध में झोंकने वाला कहा, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए कई तीखी बातें कही। अब तक दुनिया मान रही थी कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और ज़ेलेंस्की को ट्रंप का पूरा समर्थन हासिल है, लेकिन व्हाइट हाउस से आई इन तस्वीरों ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति का स्वागत करते दिख रहे हैं। ट्रंप ने दरवाजे तक आकर उनका स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ गई और एक छोटे से देश यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से भी भिड़ गए। देखिए, ट्रंप ज़ेलेंस्की से कह रहे हैं कि आपका देश बड़ी मुसीबत में है, जिस पर ज़ेलेंस्की कहते हैं, मैं जानता हूँ। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात काटने लगते हैं। Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you, you have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को देश को युद्ध में झोंकने वाला कहा, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए कई तीखी बातें कही। इस बैठक ने दुनिया भर के नेताओं का ध्यान खींचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तीखी नोकझोंक के बाद पूरी दुनिया हैरान है। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चले जाने तक के लिए कहा गया। ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इतने तनाव भरे माहौल में बातचीत हुई। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया कि वो तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद नाराज ज़ेलेंस्की बातचीत से उठे और तेज कदमों से बाहर निकलकर अपनी काली एसयूवी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। दोनों नेताओं के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन ये बातचीत कैंसिल हो गई। दरअसल दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस पहुंचे थे। यहाँ पर मीडिया के बीच दोनों की बातचीत शुरू हुई। ट्रंप ने कहा कि अगर वो और ज़ेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोक देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को जंग की तस्वीरें दिखाई। ट्रंप से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा, शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा, हम चाहते हैं ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूँ क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा,
ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल न रखा होता तो कोई समझौता संभव नहीं होता। मैं ना तो पुतिन के साथ हूं, ना किसी और के साथ, मैं सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच लगभग 30 मिनट तक अच्छी बातचीत चली, फिर ये तब बहस में बदल गई जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के बीच आ गए। इस तीखी बहस के बाद दोनों नेताओं का बयान भी सोशल मीडिया पर आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई। हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। कितनी हैरानी की बात है कि भावनाओं के बीच क्या क्या सामने आता है। मुझे ये समझ आया कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश कर रहा है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल हाउस में ही अमेरिका का अपमान किया। वो तब वापस आ सकते हैं जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हो। इस पूरे वाकये के बाद जेलेंस्की ने एक्सपोस में अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का। यूक्रेन को न्याय संगत और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच इस मुलाकात में मिनरल्स को लेकर बड़ी डील होनी थी, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I... You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West If speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you you. just say thank you. I said a lot of times except that thank there, you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long.